सर स्टार्ट करेंगे. Yes, start. Hello everyone, good evening. Am I audible? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. It will be really great. if Good you evening, start- sir. Yes, yes. It will be really great if you will start your video. I hope no one has any problem regarding this. Start your video. It will be an informative session, and I'm assuring you that you will going to know many things about your career that probably you might be in a dilemma. ठीक है? Please start your video, everyone. चलिए ठीक है, बाकी लोगों को नहीं स्टार्ट करना है. ऋषि एंड हर्ष हैज स्टार्टेड. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन? दर्श. ओके, वेरी गुड. सभी कैमरा ऑन करके पर्सनली इंटरेक्शन करें, क्वेश्चंस पूछें. चलिए, लेट अस बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, let me just give you the brief introduction about me. I'm really thankful to Sachin sir. आप लोगों को पता है या शायद सर ने बताया होगा, I'm pretty sure. I am one of the initial students of sir. मैंने अपना 12th का जो बोर्ड था सर के साथ ही, मैंने सर पे इसका साथ ही पढ़ा था. इनफैक्ट ग्रेजुएशन में भी आई वाज विद सर. मैं भी आपके जैसे ही कॉमर्स का कैंडिडेट हूँ. एंड God is kind to me, and I'm also from Chhindwara. I'm still in Chhindwara. At present, I'm in Chhindwara. I am born and brought up in Chhindwara. Did my entire education from Chhindwara. Commerce में मैंने graduation मैंने यहाँ हरीश गौर से अपना BCom किया है DDC से. But again, God is kind, as I told you. My parents has given me opportunity कि भाई मैं आगे निकल सकूं. Still, I remember those days were very difficult, very difficult. Was not knowing anything. I did my graduation, simply went for coaching for CAT, और वहां से चीजें अलग बदलना चालू हुई. ठीक है. In this entire 15 years of my career, I started my teaching since 2005. I was although मैं सर के साथ भी थोड़ा बहुत पहले भी करता रहा हूँ ये activities, but 2005 से professional teaching में मैं आया, and initially I started my career with Career Launcher. Then I joined Mumbai में एक college MBA के लिए Chetna Institute, and then parallelly I was like again considering my passion and मेरे खर्चे निकालने के लिए. That time our financial condition were not that good, so during my MBA I joined Time. After switching to Career Launcher, I joined Time. I was with Time Mumbai for close to 5 years, and that was my phenomenal years. I've learned so many things about quantitative ability, the exams that is there, the reasoning part, the English thing, and everything. Trust me, my personality was not that great during the time of my graduation also, or during the time of my 11th 12th. We used to very shy, and we were not in a position to speak to the person in front of. मतलब अगर आप 5-7 लोगों को भी खड़ा कर दो तो बोलने की मन नहीं होता था. Today I am lucky enough. I have started taking seminars, webinars now. From last 3 months, webinars, initially seminars. So I am in Chhindwara. मैं सर से मिला. सर ने मुझे ये चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि I should. Shrajan is saying I am not audible. Is it? Am I audible? Yes, sir. Shrajan, it's a request. बेटा आप एक बार एग्जिट होके एंट्री करिए. होता है कई बार जूम में ये थोड़ा प्रॉब्लम है. You can just exit and come back, तो आपको आवाज आएगा प्रॉपर. I think remainings are listening this particular thing. So इन 15 सालों में जो एक्सपीरियंस गेन किया, फिर 2013 में I shifted to Nagpur, and then we started with the organization called Vikalp Education. There we are training candidates for after graduation. There is an option called CAT exam. You can appear for CAT exam, and IIMs के लिए आप प्लान कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, और कंपनीज जो आती हैं वो भी एप्टीट्यूड राउंड्स कंडक्ट करती हैं. यू कैन गो फॉर दैट आल्सो. तो आफ्टर ग्रेजुएशन, बट you should understand, हमारे टाइम पे तो इतना नहीं था. ड्यूरिंग द माय टाइम आल्सो क्लैट का एग्जाम, लॉग एंट्रेंस भी नहीं होता था, मैनेजमेंट में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था. उस समय तक तो ये सब नहीं था. बट नाउ you should understand, after 12th also there are so many career opportunity,
and so many brilliant career opportunity. तो उसी के लिए ये सेशन हमने आज प्लान किया है। सर हमेशा से मुझसे बात करते रहे, ट्राई करते रहे, हम लोग हमेशा से डिस्कशन थे, पहले भी करते रहे इस बात को लेके कि बच्चों के लिए हमें यहाँ करना है, बिकॉज द अवेयरनेस, ऑल्दो सोशल मीडिया इज अवेलेबल, इंटरनेट इज अवेलेबल, वी आर कनेक्टेड। सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी। Just 10 minutes before, I was connected with Mumbai College. Now I'm connecting you with specifically मैं अभी यहाँ छिंदवाड़ा में बैठ के आपसे कनेक्टेड हूँ, और इमीडिएटली 5 में मुझे मुंबई नागपुर से मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उनसे कनेक्ट होना। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो ऑल्दो टेक्नोलॉजीज आर गुड, बट समहाउ टेक्नोलॉजी में सेग्रीगेशंस आर नॉट देयर कि विच थिंग टू अंडरस्टैंड, विच इज नॉट, which is to be ignored and which is to be accepted. There you need mentors, and trust me, सर ने मुझे बहुत गाइड किया है। जब मैं अपने 11th-12th में था, जितना भी उस समय कि लोगों को पता था, उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, 99-2001 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी सर ने हमको काफी ट्राई किया, बताया। इसके बाद हम लोग ने भी लर्न किया, बट मैंने बहुत स्ट्रगल किया मेरी लाइफ में, खासकर इंफॉर्मेशन को लेके। दैट इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट टॉकिंग, देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई पढ़ने में हमें दिक्कत हो रहा है ऊपर नीचे, बट जो इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया है हमारे टाइम पे, वो बहुत बड़ा क्राइसिस था, जो आप लोगों के लिए ना हो, इसीलिए ये सेशन हमने प्लान किया है। तो आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंटली 10+2 के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, हमने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस आफ्टर स्कूल्स। अनकन्वेंशनल, जिसके बारे में हमने जनरली सुना नहीं है। ज्यादातर हम किस बारे में सुनते हैं, आप अगर कॉमर्स में है तो सबसे बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी जो आज से 20 साल पहले भी था, आज भी है और आज से 20 साल बाद भी रहेगा, वो है सीए, और उससे थोड़ा मिलता जुलता सीएस हो सकता है, आईसीडब्ल्यूए हो सकता है। तो ये एक करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बट वो कन्वेंशनल है, जो सालों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। साइंस वाले बच्चों के लिए इंजीनियरिंग करियर अपॉर्चुनिटी है, मेडिकल करियर अपॉर्चुनिटी है, बट इनके अलावा भी बहुत से करियर अपॉर्चुनिटी हैं जो सर चाहते थे कि मैं आपके साथ शेयर करूं। Basically, we are into that only. We preparing candidates for after 10+2 graduation के बाद कि जो है after the session, अगर आपको कुछ मुझे पर्सनली बात करनी हो, आई एम अवेलेबल। कल भी हूं मैं, और मैं आज से 15 दिन बाद भी आने वाला हूं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। आई कैन कम टू द कैंपस ऑल्सो, आपके कोचिंग सेंटर पे भी मैं आ सकता हूं। वी कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इन डिटेल, बट टुडे आई विल बी गिविंग यू ओवरव्यू। जितना भी 40 मिनट का टाइम भी अपने पास बचा हुआ है, उसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। माय रिक्वेस्ट इज, आफ्टर लिसनिंग टू एंटायर सेशन, कंपल्सरी स्टार्ट सर्चिंग इन गूगल, start identifying things, because everything whichever I will going to discuss is available in Google also and YouTube also. तो अब आपको एक segregated information मैं दूंगा, उसको आपको in detail निकालना है। उसके बाद क्वेरीज होंगी, मेरी वेबसाइट भी है, वहां पर सारी डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से बताऊंगा एंड में। वहां जाके आप देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब का चैनल है, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, काफी सारे सेमिनार, ये भी अभी लाइव हो रहा है स्ट्रीम यूट्यूब पे, तो वो भी आपको देखने को मिल पाएगा। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द करियर ऑप्शंस अवेलेबल। आई होप एवरीवन इज प्रीटी मच enthusiastic about learning new things. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so my request is it should not be a one-way communication. It's a sincere request. I will be explaining. If you have any query, there are two options now you have. Either you can write on chat box, ठीक है, privately send me a message, or you can simply unmute your mic and then you can answer. You can ask. ठीक है, at the end also I will open for the discussion, वो भी हम लोग करेंगे, but still in between also if you have any query you can ask me. ठीक है, so let us begin. Unconventional options मैंने अपने बारे में बता दिया. These all informations are available in website. Our website is vikalpeducation.in in simple. This is about us. मैं इसमें अब टाइम नहीं खराब करूंगा, आप ऑलरेडी उसको आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. Before I should start with the actual session, let me just devote few minutes on asking one important quiz. I am pretty sure आप लोग ट्राई करेंगे, and I hope you are sitting with paper pen. इससे मेरा पर्पस क्या है पेपर पेन निकालने का आपके लिए? जनरली क्या होता है वेबिनार्स में, हमको क्या लगता है कि एक प्रवचन चल रहा है, ज्ञान हो रहा है और वही हम लोग को सुनना है बस. नो,
इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी अ टू वे थिंग. सो इसीलिए एक छोटा सा पजल मैंने आपके लिए रखा है, एंड इट्स अ प्रीटी सिंपल थिंग. आपका सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी, बीइंग अ कॉमर्स ग्रेड, आपको वो होना चाहिए इंफॉर्मेशन. सो ये पजल आपके सामने है. आप ये सिंपली, आई विल नॉट डिवोट सम मोर टाइम. मैं आपको कुछ ही टाइम दूंगा. आपके सामने 5 5s हैं, ये 5 अलग अलग हैं. आपको इनके बीच में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना है और इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करके 100 बनाना है. द ओनली थिंग इज, इसमें 5 के अलावा आप कोई नया नंबर नहीं लिख सकते हैं. इफ यू आर राइटिंग 4 3 6 7 नहीं चलेगा. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, 5 को 5 टाइम्स ही लिखना है, 5 से ज्यादा नहीं, 5 से कम नहीं. और मैंने नीचे लिखा, देखो कितने सॉल्यूशन चाहिए, मिनिमम 3 सॉल्यूशन. और सबने अब वीडियो बंद कर लिया है. क्यों भाई? स्टार्ट योर वीडियो, स्टार्ट फेसिंग थिंग्स, चैलेंज योरसेल्फ. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग. होप यू अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. Yes, sir. Please try at least one solution, at least 2, not 3, at least 1 or 2. जल्दी से पेपर पेंसिल निकालो सभी. आ गया सर, आ गया सर आ गया. जिसका वॉइस नहीं आ पा रहा है, ब्रिलियंट. प्रज्ञा has given me the first solution. Fantastic. It was absolutely correct. Try Pragya second answer and remaining, see, send me privately so nobody can see your answer. तो आपको भी पता चलना चाहिए कि कौन सा आंसर कैसा किसका आ रहा है. प्रज्ञा का फर्स्ट आंसर इज परफेक्टली करेक्ट. So try second one. Shrajan, excellent Shrajan. और Aryan has given me the similar answer. Very good Darshan. I know we are very very talented. ये केवल बोला जाता है कि छोटे शहरों में बच्चे टैलेंटेड नहीं होते हैं. आप करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आप अच्छा करेंगे. Darshan has given me the answer. Aryan has given me the answer. Harshita has given me the correct answer. Manu का एक नंबर मिस हो गया, but Manu is also correct. Yugam has given me the answer. Akshat has given me the answer. Fantastic, very very good. You are participating. This is what my purpose is. That is why we keep puzzles initially. This is the only puzzle because it's a very small session. Anyone else apart from this? So the common solution जो मिले हैं वो मैं लिख देता हूं आपके सामने. First is, the first common solution that I got is from the first person. It is 5 into 5 into 5 minus 5 into 5. ठीक है. प्रज्ञा आई थिंक हैज गिवन मी द फर्स्ट आंसर, एंड बहुत सारे लोगों ने उसके बाद भी दिया. सेकंड जो कॉमन आंसर सबका आया है वो है 5 plus 5 plus 5 plus 5 into 5. Now can anybody tell me, is it correctly represented second, or is there any mistake in the second one? सब ब्रैकेट आना चाहिए था. Mistake है. Excellent. This is what, see, this is the wonderful thing, and trust me, आपको यकीन नहीं होगा, मैं इंजीनियरिंग में बहुत सेमिनार्स लिए मैंने. मेरा जो विकल्प का स्टार्ट किया था तो इंजीनियरिंग बच्चों से स्टार्ट किया था. Most of them have absolutely zero practical understanding about this basic operations. Trust me, they are just known for their engineering degree. That's it. You are far far better than them. अगर ब्रैकेट नहीं लगाते as per the board mass rule वो गलत हो जाता, but अब करेक्ट है. Now can anybody tell me the third? Himani has given me, but no, Himani का करेक्ट नहीं है. Might be the typing mistake. ठीक है. So because we don't have sufficient time, मैं आपको third solution देता हूं. Third solution will be, we have in these two, can I say 4 major operators थे, multiplication, addition. Oh, well, fantastic Darshan. Darshan Banasi has given me the most unexpected answer जो मुझे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नहीं मिलता है. तो let me tell you the first Darshan का answer, 5 factorial. Everybody know factorial? Everyone know factorial, yes or no? 5 Yes. factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is what factorial is. Factorial is nothing but n factorial is number का multiplication till 1 तक. So 5 factorial minus 5 plus 5 plus 5
plus 5. This is really, really brilliant. Darshan, great beta. What is 5 factorial in terms of number? It is 120. 120 minus 20 is 100. This is third wonderful solution. Fourth solution I was giving, it is regarding divide. 5 minus 5 upon 5. Can anybody tell me this is how much? 5 minus 5 by 5 is how much? 4. 4. Simply 4 into 5 into 5. Is it 100? Yes, sir. Yes, sir. And the point is, it is different. And we are following the condition. 5 5s and 5 ko apne. And I'm giving you the last solution. Although I have 2 more. One I'm giving you. One I'm expecting कि आप try करेंगे. Himanshi has given me this solution. Fantastic, Himanshi. Really, really good. आपने भी यही same solution दिया. देवांशी बेटा आप 2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. And you are using 2 that to be not accepted. That is why Devanshi आपका answer is not valid. Fifth solution is the most brilliant solution. 5 plus 5. 10. What is 10 square? What is 10 square? 100. तो भी स्क्वायर बनाना है मुझे. कैसे बनाऊं स्क्वायर? मुझे यहां ऊपर में कुछ तो करके 2 बनाना है. मैं 2 तो लिख नहीं सकता हूं. एज पर द रूल 2 इज नॉट अलाउड. बट कैन आई मेक 2 हियर? यहां पे 2 बन सकता है. कितने 5s रिमेनिंग है मेरे पास? 3 5s रिमेनिंग है. 3 5s. सो यूजिंग 3 5s कैन आई मेक समथिंग कि यहां पर पावर में 2 बन जाए? Yes, sir. एनीवन गेस? 5 plus 5 plus 5 upon 5. Amazing, yaar. Amazing. I'm really, really impressed. Very good. 5 plus 5 by 5. It is 100. This is the fifth solution. So these are few things to which actually doesn't require a specific knowledge. This require your logical thinking, logical understanding, your analytical ability. And this is the need of an hour at present. Trust me, your degrees are one part of your specific course, one part of your future, only one part. But अगर आपका analytical ability, आपका logical thinking अच्छा नहीं है, it will be difficult for survive in future. In fact, अगर आप छिंदवाड़ा में रह के भी अगर business करना चाहते हो या existing कुछ करना चाहते हो, then also required ये सब basic चीजों का requirement रहेगा. So 5 solution दिए, 6th will be your homework. I will ask Sachin sir about your 6th answer और मैं सर को 6th आंसर भेजूंगा. आई एम प्रिटी श्योर आप लोग 6th ट्राई करेंगे और किसी को मिल गया तो किसी को बताएगा नहीं कोई. आप केवल सर को देना, ठीक है, जब भी आपको मिलता है 1-2 दिन 4 दिन में, और ट्राई करके बताना है. गूगल महाराज को परेशान नहीं करना इसके लिए, ठीक है. गूगल महाराज बता तो देंगे बट गूगल महाराज हर जगह आपके सामने नहीं रहेंगे. तो गूगल से उतनी ही चीज लो जितनी जरूरत है. जो नहीं जरूरत है उसको इग्नोर करो भाई. Let us move to the main part of our discussion of the day. आज का हमारा जो मेन डिस्कशन है उस पे हम लोग आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आपके सामने जो मेजरली डिस्कस करने वाला हूं वो है मैनेजमेंट एज अ करियर आफ्टर 10+2. You might be knowing this that there is a culture now in which आप आफ्टर 12th ही डिसाइड कर सकते हैं कि यू विल बी गोइंग फॉर मैनेजमेंट एज अ करियर. जनरली मैनेजमेंट एज अ करियर जो होता है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम रखेंगे और लिखने के बाद एग्जाम को देन यू विल बी शिफ्टिंग फॉर आपका कैट एग्जाम दे रहे हैं और उसके बाद आप या कैट या दूसरा एग्जाम दे रहे हैं और एमबीए के लिए जा रहे हैं. बट नाउ फ्रॉम लास्ट 5 ईयर स्पेसिफिकली जब से IIM इंदौर हैज स्टार्टेड विद देयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, the career in management is now starting from 12th itself. तो आप 12th के बाद ही एंट्रेंस, 12th के एग्जाम के तुरंत बाद ही 2 महीने में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं. इसी साल बस पैंडेमिक के कारण एग्जाम्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं और अभी हो चुके हैं, फाइनली सारे एग्जाम्स हो चुके हैं. तो जो एग्जाम्स हैं आप लिख सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर 12th के बाद और वहां से आप एंट्री कर सकते हैं कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के लिए. मैं कुछ कॉलेजेस के आपको नाम अभी बताऊंगा आपको. तो मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? ट्रस्ट मी, अगर आप बड़े सिंपली अगर किसी कॉर्पोरेट में आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं
और कहीं पे भी अगर आप अपने आप को स्टैब्लिश उसमें स्ट्रक्चर में रखना चाहते हैं, एमबीए और मैनेजमेंट एज अ करियर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है, कंपल्सरी है, मान के चलिए. आइदर यू शुड हैव अ प्रोफेशनल डिग्री लाइक सीए, सीएस, और एल्स इफ यू डोंट हैव अ सीए, सीएस डिग्री, देन ऑल्दो यू आर एन इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी, स्टिल यू आर डूइंग अ मैनेजमेंट डिग्री. तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं, इट विल बी रियली रियली वंडरफुल. आपको पता होगा कि नागपुर में भी सिम्बोसिस कॉलेज आ चुका है, उनका ये सेकंड बैच इस बार उन्होंने एडमिशन किया. बट इन सारे कॉलेजेस के लिए आपको स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा आज. ठीक है. देन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है, अब आपको मैं बताऊं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या होते हैं. IIM इंदौर एक ट्रेंड के साथ हमारे पास आया. आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज IIMs आर, राइट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आपने सुना है इनके बारे में? यस सर. यस सर. ठीक है. सो मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है, या जो मेरे लिए जो मेरा टर्म जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, सम टर्म्स मे बी न्यू फॉर यू, यू कैन इमीडिएटली राइट, यू कैन आस्क मी, कभी भी तुरंत पूछो, अभी लेक्चर के बाद पूछो, या फिर बाद में मुझे फोन करके या सर को इन्फॉर्म करके पूछो, बट पूछो. ठीक है. तो जो टर्म्स में इस्तेमाल कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है. तो जो IIMs हैं वो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, लाइक IITs इन आवर कंट्री. IIMs में आपको एडमिशन मिला, मतलब आप उन बच्चों में से कहलाओगे, उन प्रीमियम बच्चों में से कहलाओगे जिनका एक अलग ही लेवल होता है, अलग ही अंडरस्टैंडिंग होता है. सो IIMs आर रियली 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगर आपको मिल गया, बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी, बहुत बहुत ट्रिमेंडस करियर है आपके लिए. तो IIM इंदौर, इंदौर हमारे एमपी में ही है. तो IIM इंदौर जो है 6th नंबर का कॉलेज है. ठीक है. ब्लैकी के नाम से टर्म इस्तेमाल होता है. बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोझिकोड एंड इंदौर. तो इंदौर इज 6th रैंक कॉलेज, 6th IIM इन आवर कंट्री. उन्होंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया. और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में क्या होता है? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें आप आफ्टर 12th यू ज्वाइन दैट कॉलेज एंड यू पास्ड आउट. कब पास आउट होते हैं? 5 साल के बाद आप पास आउट होते हैं विथ योर मैनेजमेंट डिग्री. तो आप अगर IIM इंदौर का एग्जाम क्लियर करके आगे बढ़ते हैं तो आपको 5 साल के बाद जो डिग्री मिलेगा वो MBA, BBA, हालांकि IIM इंदौर BA डिग्री देता है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे BBA प्लस MBA आपको डिग्री मिलेगा. तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर दोज पीपल हु आर प्रीटी क्लियर दैट कि मुझे मैनेजमेंट ही करना है और IIM से ही करना है, तो मुझे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जाना चाहिए. नागपुर में रामदेव बाबा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सुना होगा आपने उसका नाम. वो भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाता है फॉर मैनेजमेंट के लिए. बट IIMs और रामदेव बाबा कॉलेज नागपुर का आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है. तो यार ये ध्यान रखिए कि अगर आपको इंफॉर्मेशन जल्दी मिल रहा है तो वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट, उस पे जाए. इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का जो फीस है, सरप्राइजिंगली फॉर 5 इयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट क्लोज टू 30 lakhs होता है. कितने सालों में? 5 साल में. इस साल का उनका एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 24 lakhs इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले बच्चों का. दिस इज व्हाट अबाउट IIMs. तो जो 5 साल में आपने इन्वेस्ट किया वो 2 साल में आप निकालोगे. टाइम वैल्यू ऑफ मनी सर पढ़ाते हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल भी करोगे तो भी 2 साल में आप उसको निकालोगे. उसके बाद जो लाइफ होगा वो डिफरेंट है. मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया था, वो सर को मैं जरूर भेजूंगा इसके बारे में डिटेल में. एक लड़की हमारे पास ज्वाइन की थी हमारे लिए, एंड शी हैज एक्सप्लेन इंटायर एवरीथिंग अबाउट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. ठीक है. तो उसमें बहुत अच्छे से शी हैज वंडरफुली एक्सप्लेन. शी इज हरसेल्फ इज अ फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट, मतलब उसने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन करके वो 5वां साल है उसका अभी, और उसका प्लेसमेंट भी हो चुका था उस समय तक. इसके बाद देयर आर 2 ऑप्शन, IIM इंदौर और IIM रोहतक, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 5 साल का डिग्री है, 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का मास्टर. इसके अलावा भी कुछ और है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक तो आपका जेवियर्स करके यूनिवर्सिटी होती है, उसमें रहता है. और फिर देयर आर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, जैसे स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं नागपुर में, जैसे रामदेव बाबा कॉलेजेस है, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं. तो ये आजकल का बड़ा ट्रेंड है कि आप जब एंटर कर रहे हो तो आप सीधा मास्टर डिग्री के साथ वहां से निकल रहे हो. बट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम किसी का भी नहीं चूज कर सकते हैं भाई, ये याद रखिएगा. इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इज योर एंटायर लाइफ. आपको क्या लगता है MBA के बाद कुछ पढ़ेंगे क्या अपन? MBA के बाद कुछ नहीं पढ़ना. MBA इज फाइनल एजुकेशन टू अस. तो हम ऐसी जगह से MBA करें जहां से हमारा एक रेपुटेशन बना रहा है, रिक्वायरमेंट बना रहा है.
what is the right time to start preparation? The best time for start preparation is, याद रखिएगा आप, as soon as you passed out 10th. बट अगर आप 12th में भी हैं तो भी आपके लिए टाइम नहीं बिगड़ा है. बट इफ यू थिंक कि भाई ग्रेजुएशन से स्टार्ट करना है या 12th के एग्जाम बोर्ड के बाद स्टार्ट करना है, तो इट विल बी टफ, बिकॉज दीज कॉलेजेस आर रियली टफ टू एंटर, बिकॉज नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म देते हैं. सिम्बोसिस हो गया, नरसिंह मुंजे हो गया, आईएम्स हो गए, जेवियर्स के कॉलेजेस हो गए, ये सब बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं ये नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म देते हैं. तो नेशनल लेवल के बच्चे बैठते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है, फर्दर प्रोसेसेस होती हैं. तो प्रिपरेशन जितना अच्छा स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, उतना आपको अच्छा रहेगा. आप याद रखिए, अब आपको प्रिपरेशन करने के लिए नागपुर और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, इंदौर नहीं जाना पड़ेगा. अब सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे मैं आपके सामने आज बैठा हूं, इसी तरीके से हम भी लेक्चर्स ले रहे हैं और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी लेते ही होंगे प्रोबेबली. ठीक है, तो ये आपको समझना है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, तो आप नागपुर में बैठकर भी प्रिपरेशन अपना, छिंदवाड़ा में बैठकर भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. उसके लिए स्पेसिफिकली अब नए पैंडेमिक के बाद ये नया नॉर्मल आ गया है. जिस तरीके से आप कोचिंग कर रहे हैं सर के साथ, वैसे ही हम लोग यहाँ लेक्चर्स भी कर सकते हैं. मैं जब वहां राइट कर रहा था तो आपको एक एक चीजें क्लियर दिख रही थी, बिकॉज आई वॉज यूजिंग टैब फॉर्म. सर आपको बोर्ड से पढ़ाते तो वो भी एक ऑप्शन होता है. तो देयर आर ऑप्शंस, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. यू कैन स्टार्ट विद दैट. व्हाट शुड बी द इनिशियल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? ये सबसे क्रूशियल स्टेज में आपको समझ में आना चाहिए. यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको पहली बात क्लियर होना चाहिए कि मेरा कौन सा करियर ऑप्शन पे मुझे चूज करना है. आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहीं से शुरू होता है कि आपको पता होगी क्या करना है. ये चीज हमको नहीं पता थी, इसलिए मेरे अभी बहुत टाइम खराब हुआ, हम बहुत डिफिकल्ट हुआ. आपको हम लोग बता रहे हैं और मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल इनिशियल से गाइड करने को तैयार हूं. तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का पहला स्टेप है आपको पता होना चाहिए. उसके बाद मेरा उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, और उसके बाद हमको फिर यहां पर ये अंडरस्टैंड करके उसके लिए प्रोफेशनली क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहिए. तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वैसे ही स्टार्ट होता है भाई आपका. व्हाट शुड बी द टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी? ये बहुत डिटेल में हम आपको एग्जाम के टाइम पे जब आप ज्वाइन करते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको बहुत डिटेल में अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं अपने बच्चों के लिए जब होता है. क्योंकि अभी फिलहाल आप एग्जाम के लिए तैयारी नहीं स्टार्ट नहीं किए प्रिपरेशन करना, तो इसलिए मैं इसमें अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा. बता के भी कोई सेंस नहीं बनेगा. अभी बीबीए एस्पिरेंट के लिए जो राइट करना चाहते हैं उनको जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन, और जल्दी से जल्दी डिग्री के लिए जाना चाहिए भाई. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंपलसरी अंडरस्टैंड करना है. जो मैंने कुछ बातों को आपको रख दिया. ग्लोबल डिग्रीज भी ऑप्शंस में अवेलेबल है आपके लिए, जो करियर के लिए हमको चूज कर सकते हैं. तो मैनेजमेंट एज अ एजुकेशन बहुत फिनोमिनल करियर है. इतने ऑप्शंस हैं, आप केवल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी जा सकते हैं या डायरेक्टली बीबीए करके आप प्रिपरेशन करके एमबीए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिम्बोसिस आपको जाना होगा तो बीबीए में जाइए, देन सेकेंड ईयर से अपन प्रिपरेशन करिए कैट एग्जाम का, और यू कैन गो टू एमबीए के लिए आईएम्स में और कहीं और पे भी. सर के साथ में ही, सर का ही एक स्टूडेंट है और सर के रिकमेंडेशन से ही हमारे साथ आए थे. आपके सीनियर होंगे पार्थ साहू. ठीक है, पार्थ साहू हैज जॉइंड विकल्प एजुकेशन एंड ही हैज क्लियर्ड. इनफैक्ट वो बहुत लेट पता चला उनको, एंड ही वाज टेलिंग अस दैट कि सर अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए ही जाता था आईएम्स के लिए. एंड ही वाज रियली ब्रिलियंट, एंड ट्रस्ट मी, he got selected in Symbiosis Nagpur. He got admitted in Symbiosis Nagpur and he started preparation in BBA for BBA के लिए, और उसके ऑनलाइन क्लासेस चालू भी हो चुकी हैं. अगर आप में से कोई टच में होगा तो जरूर उनसे बारे में पूछिएगा हमारे बारे में, और हमारे रिव्यूज में उन्होंने दिया भी हुआ है पार्थ साहू. ठीक है, दिस इज बेसिकली द की ऑफ द थिंग्स. इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड करियर ऑप्शन का अमलगमेशन, द इंटरसेक्शन पॉइंट दैट यू शुड कम अप विद. विकल्प आपको एक बहुत एडवांटेज प्रोवाइड करता है. ये बहुत थ्योरेटिकल लगता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. मैं केवल इतना बोलूंगा कि आपका इंटरेस्ट, आपकी एबिलिटी और करियर ऑप्शन, ये तीनों को अगर आप मिला पाए तो सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं. और उसके लिए आपका साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होना चाहिए. तो विकल्प का जो मेरी वाइफ खुद है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एक बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है एचआर के लिए, वहां से शी हैज डन अ साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर एमबीटीआई.
and she is training, she is taking psychometric testing for almost every our candidates का, and then उनको बता रही हैं कि भाई कैसे उनको आगे अपने करियर ऑप्शन को चूज करना है. So this is one of the main feature that विकल्प is having. और सबसे बड़ी बात है, हम इन सब चीजों के लिए डिपेंडेंट नहीं है किसी पे. Like I myself take quant sessions, reasoning sessions. मैडम जो है श्वेता मैम वो है, वो खुद वर्बल की सेशन लेती है, साइकोमेट्रिक, शी हरसेल्फ इज एन एचआर, और सबसे बड़ी बात मोटिवेशनल ट्रेनर है. तो वो आपको पूरा गाइडेंस आपको हमारे यहाँ से हमेशा से के लिए ये मिलता है. तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू. अब मैं क्विकली आपको क्लियर कर देता हूं जो करियर ऑप्शंस हैं आपके पास. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन जो है वो मैनेजमेंट में है. बीबीए के लिए मैंने आपको बताया कि बीबीए में जो मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं, जस्ट अ सेकेंड, दीज आर द टॉप कॉलेजेस. IIM इंदौर, रोहतक, आप करियर इन मैनेजमेंट के लिए जा सकते हैं. सिम्बोसिस है, नरसी मुंजे हैं, सेंट जेवियर्स हैं. मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में आप IPM का देख सकते हैं. यू कैन लुक एट फॉर सेट एग्जाम, यू कैन एनमेट एग्जाम. सो ये सारे जो एग्जाम्स हैं ये मैनेजमेंट पे फोकस्ड है, जिसमें आपको मैनेजमेंट की डिग्री मिलेगा. या तो आप ग्रेजुएशन अकेला करिए या ग्रेजुएशन के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप ज्वाइन करिए. ये मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से अभी तक डिस्कशन किया है. ठीक है, तो बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं मैं आपको और उसके बारे में बता दूं. एक IIM इंदौर है, IIM रोहतक करके एक अलग कॉलेज होता है, उसका अलग एग्जाम है. अगर आप दिल्ली साइड में पेरेंट्स आपके अलाउड करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मालूम है बीकॉम ऑनर्स बीबीए की स्पेसिफिक डिग्रीज जो देता है उसके लिए DUJET करके एग्जाम होता है. देन सिम्बोसिस तो मैं बता ही चुका हूं. There is a power cut in my place, so I'm switching off my video. I hope the power should come early. NPET एग्जाम होता है नरसी मुंजे. देन उसके बाद निर्मा करके एक है कॉलेज, वहां पर आपको स्पेसिफिकली उसके लिए सेपरेट एग्जाम कंडक्ट होता है. देन क्राइस्ट इज वन ऑफ द कॉलेज इज देयर. यस, सृजन का क्वेश्चन इज वेरी वेरी वैलिड. Shrajan has asked me a question that DUJET में maths compulsory होता है. तो yes, there are specific exams which require maths as one of the subject in your 11th 12th. तो if you are 11th 12th में अगर आपको पास अभी भी ऑप्शन है और आप मैथ्स ले सकते हैं तो जरूर ले लीजिए. ट्रस्ट मी, इट विल बी रियली रियली गुड इन एडवांटेज. नॉट अबाउट द एग्जाम्स बट इन अ ब्रॉडर सेंस ये होगा, बहुत फायदा होगा आपको. हम लोगों के टाइम पे MP बोर्ड में ये सब चीजें नहीं होती थी कि मैथ्स आप ले लो, बट अब आप लेके कर सकते हैं. और आज भी हम लोग कहीं ना कहीं उस चीजों का हमको प्रॉब्लम होता है. हायर मैथमेटिक्स स्टिल फॉर मी इज अ पेन. ट्रस्ट मी, हायर कॉन्सेप्ट जब आते हैं तो डिफिकल्ट होता है. तो मैथ्स आप ले लीजिए. सृजन का क्वेश्चन करेक्ट है. DUJET और नरसी मुंजे दोनों मैथ्स रिक्वायर्ड मांगते हैं. नरसी मुंजे हैज प्रॉमिस की वो लोग चेंज करेंगे, बट अभी तक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से DUJET में भी रिक्वायरमेंट है. दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब अगर आपका मैथ्स नहीं है तो आप एंट्रेंस नहीं दे सकते. देन दे हैव अ मेरिट बेस्ड कोर्सेज, बट मेरिट बेस्ड कोर्सेज का कट ऑफ पता है बेटा आपको क्या होता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी हैव 2 ऑप्शन, मेरिट बेस्ड कोर्स, सेकंड ऑप्शन है आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाइए. मेरिट बेस्ड कोर्स का जो कट ऑफ होता है कॉमर्स, लेट्स से श्रीराम कॉलेज के लिए, लेडी श्रीराम ले लीजिए या श्रीराम कॉलेज के लिए ले लीजिए, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 100%. तो अगर आप 100% लाएंगे तो शायद आपका नंबर लगेगा, उसमें भी जरूरी नहीं है. तो 100% चाहिए 12वीं में, वो मेरिट बेस्ड है. उसके बाद उसमें जाना आप प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. ठीक है. और दूसरी बात जो है, इसके लिए अगर आप ब्रॉडली समझने की कोशिश करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम तो उसमें आपका मैथ्स होना चाहिए. तो अगर आपका मैथ्स नहीं है तो अभी तक के क्राइटेरिया के हिसाब से आप नहीं बैठ सकते हैं एग्जाम. इन फ्यूचर में बदलेगा मैं नहीं कह सकता हूं, बट मैं आपको बोलूंगा नहीं कि बदलेगा ही, हो सकता सेम ही रहे. ठीक है. दर्शन बनारसी जी का कहना है कि IP मैट ऑल्सो कंटेंट एडवांस मैथ्स. तो लेट मी मेक यू वेरी क्लियर, यू आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ मैथ्स का सेक्शन इज वेरी वेरी हाई वेटेज. टोटल 100 मार्क्स होते हैं, उसमें से 60 मार्क्स इज वेटेज. 60 मार्क्स का जो वेटेज होता है वो मैथ्स के लिए होता है. एडवांस मैथ्स उसमें जो आता है वो बहुत हाई लेवल का नहीं, मतलब इंजीनियरिंग लेवल का नहीं होता है. इनफैक्ट 11th 12th लेवल का भी नहीं होता है. बेसिकली 10th लेवल तक का जो मैथ्स आपने पढ़ा है उसका ही इंपॉर्टेंट वेटेज होता है. बट दे डू हैव सर्टेन क्वेश्चंस on which topic which is you might have learn in 11th 12th. but maximum जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें 80 से ज्यादा % वेटेज जो है वो आपका 10th लेवल तक का होता है. बट 10th में जो मैथ्स पढ़ते हैं, जिस तरीके की पढ़ते हैं, उसका एक तरीका अलग है.
यहाँ पूछने का तरीका अलग है। तो यू डोंट एक्सपेक्ट दैट कि क्वेश्चंस विल बी इजी, क्वेश्चन विल बी बिट लॉजिकल, आपको उसको टाइम स्पेसिफिक टाइम में सॉल्व करना है, सेक्शनल कट ऑफ उसमें होता है तो वो भी अपने को देखना है। सर आई हैव इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो व्हाट टू डू नाउ, मतलब इफ यू हैव ऑप्शन ऑफ सजन, आप मुझसे पूछ रहे हैं अगर आपके पास ऑप्शन है मैथ्स लेने का, आई एम स्ट्रेट अवे सजेस्टिंग यू टेक मैथ्स। Maths is a subject will improve your analytical ability, your overall personality. Trust me, maths is really required of the life. मैथ में इंजीनियरिंग को क्यों इतना वेटेज था भाई, इसीलिए था क्योंकि वो मैथ्स पढ़ते थे। तो अगर आपके पास ऑप्शन है यू कैन टेक, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है देन दिल्ली यूनिवर्सिटी तो क्लोज हो जाता है, बट आईएम ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपके पास आईएम से। सृजन आपके जो क्वेश्चंस है ना, मैं पर्सनली आपके साथ डिस्कशन करूंगा, इट्स माय रिक्वेस्ट, बिकॉज मुझे और भी चीजें कैप्चर करना है। यू कैन कॉल मी, आई विल शेयर माय नंबर श्योरली, वी कैन टॉक अबाउट, ठीक है, वी कैन टॉक इन डिटेल, नो प्रॉब्लम, मैं अच्छे से गाइड करूंगा आपको, ठीक है। तो मैं क्राइस्ट का एग्जाम आपको बताया, IPU CET करके होता है, ये भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ का है, दिल्ली का है। दिल्ली में देयर आर 2 यूनिवर्सिटीज, वन इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेकंड इज इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ ज्यादा फेमस है क्योंकि बहुत ज्यादा सीट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड बिगेस्ट करियर ऑप्शन अवेलेबल इज इन योर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ट्रस्ट मी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हॉस्पिटैलिटी अगर आप देखेंगे एक बहुत डायनामिक इंडस्ट्री है और इसका जो अपॉर्चुनिटीज है इसमें इतनी ट्रेमेंडस है। ऑल्दो इट्स बिट हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री, एंट्रेंस के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी है, बट बाद में आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो हॉस्पिटैलिटी जब मैं बोलता हूं तो उसमें टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री और जितना भी रिलेटेड आपका हॉस्पिटैलिटी सर्विस सेक्टर होता है वो सब उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ सॉरी। सो hospitality also have a crucial option available. Now hotel management have a professional degree. There are colleges like IHM, Oberoi Hotels, those who are providing professional degrees to these type of course, for these type of courses, and there is a tremendous career option available. अगर आपको इसमें और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए यू कैन आस्क मी, बट दिस इज अनदर करियर ऑप्शन अवेलेबल। अगर आपने MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी देखा होगा तो धोनी जी की जो वाइफ है साक्षी धोनी, जहां धोनी मिलते हैं उनको, तो शी वाज एन इंटर्न इन वन पर्टिकुलर होटल। दैट होटल इज नथिंग बट IIHM। इट इज वन ऑफ द मेजर होटल्स जो है वो IIHM कॉलेज था, वो IIHM होटल के अंडर में आता है वो। तो वो औरंगाबाद में है, तो औरंगाबाद में भी ऐसा है कॉलेज, और ऐसी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं वेयर यू कैन गो। यहाँ पर आपके पास मल्टी डायमेंशनल करियर ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें अगर आप देखें इतनी सारी ब्रॉडली आपके पास ऑप्शन है। यू कैन वर्क इन किचन, यू कैन बी इन फ्रंट ऑफिस, यू कैन बी इन सर्विस सेक्टर, आप शिपिंग में जा सकते हैं, कैटरिंग में जा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। किचन में भी अलग होता है, हाउस कीपिंग अलग है, और सब में अपने आप में एक डायनामिक करियर्स हैं भाई, ठीक है। इन डिटेल में मैं आपको उसको बहुत हद तक अपन बता पाएंगे। देन मेजर होटल एंड मैनेजमेंट एग्जाम, NCMS-CT, IHM ECHET, देन सिम्बोसिस का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ओबेरॉय का स्टेप एग्जाम होता है, ये सारे एंट्रेंसेस एग्जाम है। IHM औरंगाबाद हैव देयर सेपरेट प्रोसेस, दैट कॉलेज इज रियली ब्रिलियंट, ठीक है। IPU CET अगेन उसके लिए भी होटल मैनेजमेंट होता है। AIHM बैंगलोर होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, महाराष्ट्र का CET, महाराष्ट्र हमारे से नियरेस्ट है, एंड यहाँ पर काफी बड़ा एग्जाम होता है, और आईमा का भी अलग से एग्जाम होता है। तो इस तरीके से क्राइस्ट का भी होता है। तो बहुत सारे अलग होटल मैनेजमेंट एग्जाम्स है भाई। देन सेकेंड मोस्ट रिकमेंडेड करियर इज लॉ। ट्रस्ट मी, द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंट्रेंसेस हैज चेंज्ड डायनामिकली। नाउ द लॉ हैज बिकम वन ऑफ द फिनोमिनल करियर ऑप्शन, और उसमें इतना वास्ट करियर है। अगर आप लॉयर देखते हैं तो लॉयर को ये मत समझिए कि लॉयर बोले तो क्या केवल वकील जो आप प्रैक्टिस करते हुए जो सूट्स फाइल करते हुए लिटिगेशंस के चार्जेस कर रहे हैं, और लिटिगेशन में क्रिमिनल और सिविल लॉयर्स हैं। अब लॉयर एज अ करियर इतना ब्रॉड और डायनामिक हो चुका है, आप बड़ी बड़ी फर्म्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप IPR एक्सपर्ट हो सकते हैं, घर पे काउंसलिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन वर्क ऑल्सो, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ कंपनी, all multinational company. I just wanted to give an example. One of my very close friend living in Nagpur only,
he did my MBA with me, मतलब मेरे साथ ही MBA किया. After working with 5 years, he got an opportunity and joined a company called Coal India, a national brand. आपको पता है Coal India, WCL. तो Coal India में he's a manager. अब he already has an MBA degree, but he is now doing law as a part-time degree also. Why he is doing law? Because it's a simple reason. उसके डिपार्टमेंट में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में लॉ की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है. तो लॉ एक बहुत फिनोमिनल करियर बन गया है. क्लैट एग्जाम होता है. क्लैट इज लाइक IIM इंदौर. IIMs जैसे IIMs हैं वैसे ही NLUs हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. देयर आर टोटल 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्लस 1 NLU दिल्ली, तो टोटल 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है. तो अगर आपने क्लैट एग्जाम दिया तो इन एग्जाम के लिए जाना पड़ता है, इसमें मिलता है. एंड दीज आर ट्रेमेंडस. आपको मैं बोल रहा हूँ बहुत बहुत प्रोमिनेंट करियर है. Don't make a perception of a lawyer of just a काला कोट वाला आदमी. Lawyer is phenomenal career. आपको यकीन नहीं होगा कि जो बड़े बड़े लॉयर है, आप अभी आप सुशांत सिंह राजपूत का केस देख रहे हैं, तो जो रिया चक्रवर्ती का लॉयर है, वो लॉयर बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वो लॉयर संजय दत्त का भी था, उनके टाडा केस में सलमान खान का भी था. उनकी एक सिटिंग की फीस, जो एक जजमेंट की फीस, वो जो 10 लाख से लेके 25 लाख के बीच में होती. जो राम जेठमलानी जी अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी एक बार की फीस 1 करोड़ रुपीस होती थी. तो ये आपको समझना है कि ये करियर्स बहुत बहुत ट्रेमेंडस हैं भाई. इसके बाद मैं आपको इतना बताऊंगा कि हम आपको कैसे पढ़ा सकते हैं. आई वोंट टेक मच टाइम बिकॉज मेरे पास 10 मिनट है. मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि विकल्प क्या करता है और कैसे हम लोग करवाते हैं. देखिए, पहली बात, मैंने भी हिंदी मीडियम विद्या निकेतन का पास आउट हूं और हिंदी मीडियम से मैंने ग्रेजुएशन किया है. सो आई नो द प्रॉब्लम ऑफ द कंडीशन ऑफ द सिटी, बट आई कैन सी कि आप लोगों में काफी लेवल ऑफ आगे है नॉलेज. मुझे बच्चे लगातार क्वेरी पूछ रहे हैं, तो आपका लेवल बहुत आगे है. आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन वी जनरली फेस कि भाई हमें वो बड़े लोगों के साथ कॉम्पीट करने में, बड़े शहर के बच्चों के साथ कॉम्पीट करने में डिफिकल्टी होता है. तो जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, ये मैंने बनाया, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने अपने को पॉइंट आउट करते हुए, मैंने देखते हुए ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपके सामने बनाया, जिसमें हम लोग मेजरली सबसे इंपॉर्टेंटली एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आपको करवाते हैं. एप्टीट्यूड इज प्रीटी मच कॉमन. मैंने आपके सामने 3 मेजर करियर ऑप्शन ढूंढे. तीनों करियर ऑप्शंस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तीनों करियर ऑप्शन में न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी, इट इज प्रीटी मच कॉमन. दैट इज एन एप्टीट्यूड. कैट एग्जाम दोगे फ्यूचर में, एप्टीट्यूड. गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, एप्टीट्यूड. तो इसके लिए बहुत स्पेसिफिक और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है. इसीलिए पूरा न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल मैं खुद पढ़ाता हूं, और जो मेरे फैकल्टीज भी पढ़ाते हैं वो मेरे से ट्रेंड ही होते हैं. ज्यादातर लेक्चर्स मैं ही लेता हूं. अभी जस्ट इसके बाद 10 मिनट के बाद ही मेरा लॉजिकल पे लेक्चर है. तो ये आपको मिलेगा. इसके बाद जो नीड ऑफ एन आवर है, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने लाइफ में बैठा लो. एक, आपका रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना और आपके नॉलेज को अपग्रेड करना. ये दोनों चीजें कांस्टेंट बेसिस पे विकल्प में करवाई जाती हैं. और आप क्या पढ़ रहे हो उसके लिए परफॉर्मेंस को चेक करना. एंड देन फाइनली आपको रिक्वायर्ड होगा फाइनल लैब की, जहां पर क्रैश कोर्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, एग्जाम स्ट्रेटेजीज के थ्रू हम लोग आपको प्रिपरेशन कराते हैं. दिस इज व्हाट द नीड विच इज रिक्वायर्ड. सबसे अच्छी बात है कि भाई मैं खुद ही यहां से बिलोंग करता हूं. आई नो द कंडीशन, आई नो द इंटायर स्ट्रक्चर. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पूरा का पूरा स्ट्रेटेजीज है, प्रिपरेशन है, वो मेरे एक्सपीरियंस में होती है. बट मैंने भी लगभग 8 इयर्स तक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तब मैं आज इतना कॉन्फिडेंटली यहाँ कर पा रहा हूँ. और इसीलिए लोग मुझे आज यहाँ पर आके पहचानते भी हैं. और मेरे लिए नागपुर में भी काफी ज्यादा जो हम लोग हमारा जो बैचेस वगैरह बनते, तो ये आपको काफी हद तक हेल्प करने वाला इन फ्यूचर में. ये कुछ हमारे पिक्स हैं जो हम लोगों ने कंडक्ट किया. हम लोग नॉलेज अपग्रेडेशन करने के लिए हिंदू पे रिव्यू करते हैं रेगुलर बेसिस पे. ये आपको बहुत जरूरी रहेगा. एंड दीज आर द कोर्सेज अवेलेबल टू अस. ठीक है, यू कैन ज्वाइन एनी वन ऑफ द कोर्स as per the requirement at present. Let's say if you are in 11th standard, you can join a foundation course. This is a 2-year program. This will last till your preparation, and this will be 2022 batch. ठीक है. If you are a 12th candidate, you have around 6 to 8 months available. आप आराम से 12th standard का के कारण 1-year program join कर सकते हैं. And crash course is available only during the time of आपके एग्जाम के तुरंत बाद. This is actually not immediately. अभी अगर आपको पता चल गया है तो मेरा ये सजेशन है कि आप प्रिपरेशन करिए.
अभी से, अगर आप 12th में तो अभी से आप स्टार्ट करिए. इट इज नॉट अबाउट ओनली योर ज्वाइनिंग अ विकल्प एजुकेशन, इट इज अबाउट ज्वाइनिंग अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, सो you can have a proper knowledge idea and most important preparation professional के साथ ज्वाइन करने के कारण स्टडी प्लान और आपका कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, डेली का रूटीन आपका सेट होता है. आप भी समझिए एक रूटीन सेट होता है और वो रूटीन आपको बहुत हद तक फायदा करता है. और अभी अच्छी बात ये है कि हमारे जो बैचेस हैं वो वीकेंड में ही चलते हैं. ठीक है, आज सैटरडे है, आज बैच है, संडे बैच होता है, सैटरडे 4 आवर, संडे 4 आवर, तो आपका बाकी शेड्यूल हैम्पर नहीं होता है. अगर आप बाकी जगहों पे, जैसे आपका कॉमर्स क्लासेस भी है, आपका स्कूल भी है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकली चलता रहेगा. क्योंकि मेरे पास नागपुर में भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो खुद के भी उनके स्कूल हैं, देयर आल्सो 11th एंड 12th कैंडिडेट्स. ठीक है, तो ये हमारे कोर्सेज हैं. ये स्ट्रेंथ आप हमारी टीम देख लीजिए. ऋषि, मैं खुद आपके सामने हूँ, श्वेता मैम हैं अवेलेबल, देन प्रवीण सर, ही इज आवर गेस्ट फैकल्टी जो हमारे यहाँ लेक्चर्स लेते हैं. अमितावा सर, ही ज्वाइंड अस फ्रॉम मुंबई, ना ऑनलाइन होने का फायदा है. रितेश, ही इज एन एमटेक, एडवांस मैथ्स के लिए ये लेक्चर्स लेते हैं. एंड देन H. Subramaniam, he is for IHM Shimla, he is working, he has conducted seminar, और he सर्विस सेक्टर के लिए ये हमारे लिए एग्जाम्स कंडक्ट लेक्चर्स लेते हैं. देन कुछ मेंटर्स हैं, सुजीत सोनी सर, he is a manager and he still takes session with us. विक्रांत सर, रत्नबा, मनोज सर, शुभम सर. शुभम is a current affair faculty, regularly he is conducting, इनके कुछ लेक्चर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं. ये मेरे पास्ट में पिछले साल की रिजल्ट्स हैं. ट्रस्ट मी, NLU रायपुर, NLU मुंबई, ILS पुणे और इनफैक्ट NLU नागपुर आल्सो आर रियली गुड कॉलेज. BBA एंट्रेंस एग्जाम में भी सिम्बोसिस में हमारे पास 7 to 8 एडमिशंस हैं इस बाल पे, जबकि बैच का जो साइज होता है वो 25-30 का होता है. और अभी भी रिजल्ट्स आना बाकी हैं, पूरे रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं. और मेरे पास इस बार पुणे के बच्चे लगे हैं, हैदराबाद के लगे हैं, नागपुर में तो लगभग सभी सिम्बोसिस में देने वाले बच्चों का सिम्बोसिस में एडमिशन हुआ है. लॉ एंट्रेंसेस के अभी रिजल्ट्स बाकी हैं, क्योंकि कल 5th को फाइनल रिजल्ट आएगा, मंडे को, और उसके बाद फिर राउंड्स होंगे तो समझ में आएगा. ये मेरे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं. ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप नंबर सेव कर सकते हैं, 9819151836. दिस इज माय पर्सनल नंबर. I just wanted to share my website once to you so you can access maximum information from there. ठीक है, then I will take doubts. एक दो मैं doubts ले लूंगा आपके. Our website name is vikalpeducation.in. This is our website. The best part of our entire preparation is what we do is, हम लोगों ने क्या करके रखा है, सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट में डाल दिया. ये अल्ताफ हमारा मार्केटिंग IT पर्सन है, तो यहाँ आपको इंटायर लेक्चर्स मिलेंगे, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड आपको मिलने वाले हैं वेबसाइट में. ये देखिए सारे लेक्चर्स हैं. लॉ एंट्रेंस वालों के लिए अलग हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन पे ये मेरे सेशंस हैं जो हमने इसको एडिट करके आपके लिए रखा हुआ है, ताकि इन फ्यूचर में भी कभी आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एवरी सिंगल थिंग इज देयर. क्वांटिटेटिव एबिलिटी में मेरे इंटायर सेशंस अवेलेबल हैं जो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा इंप्रूवमेंट करते हैं भाई. ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको पूरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी मिलेंगे और आपको साथ में लाइव सेशंस भी मिलेंगे. एंड इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली लॉग इन टू आवर वेबसाइट. होम पेज में जब जाएंगे आप, होम पेज पे जाने के बाद यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल डाउन. विकल्प एकेडमी में जब आप क्लिक करेंगे यू विल हैव इंटायर स्ट्रक्चर, सारे एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन, लॉ एंट्रेंस के एग्जाम की इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन, होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम और थोड़े अदर देन दैट ऑल्सो का मास कम्युनिकेशन, NDA, इसके बारे में भी हमने कुछ इंफॉर्मेशन डाल के रखी है. आपको इंटायर इंफॉर्मेशन उसमें से मिल जाने वाला है. तो ये वेबसाइट काफी यूजफुल रहेगा. और हमारा पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है. तो यूट्यूब चैनल पे जब आप जाएंगे, ठीक है, वहां आपको सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल्स पे जाके. यस सम्यक, यू कैन डेफिनेटली गेट माय गाइडेंस. ये मेरा विकल्प एजुकेशन का पेज है, वो है. इट्स नॉट एन ओपन प्लेटफॉर्म, हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है. कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, अभी ये लेक्चर्स हमारा लाइव चल रहा है, देखिए. ठीक है, तो I think that's it from my side. I can take 1 or 2 questions immediately, quickly, and as sir has already as a second session,
रिमेनिंग क्वेश्चन आई कैन आस्क, आई कैन टेक डेफिनेटली वन ऑन वन आपके कॉल्स के थ्रू. यू कैन जस्ट मैसेज मी, व्हाट्सएप मी, or you can go through with sir, whatever be the thing that you want to is a convenient to you. आप सर को बोल दीजिए. और कॉमन अगर किसी को चाहिए तो कल मोस्टली मैं इवनिंग में आ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है. सृजन ने कहा था, सृजन को तो मैंने बोला कि हम लोग विल टॉक सेपरेटली. Ayush sir, I took maths 12th and now it has a risk my chance of merit based admission, so I regret choosing it. No Ayush, why you are saying this? Maths is really really required बेटा. आप impossible है merit base पे जाना. Do you really think practically 100% in commerce is possible? It is absolutely not possible. आपको 100% नहीं मिलेगा तब तक. और देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां अच्छा है, बाकी कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं है. उससे अच्छे कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू है. तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तो एंगल से देखेंगे, आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपने मैथ्स लिया है. आप एक तो सारे एग्जाम दे सकते हैं, दूसरा आपको मैथ्स का सेक्शन में बहुत हेल्प करने वाला है वो. ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स होता है, आपको पता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है, हालांकि उस लेवल का नहीं होता है जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं, बट इंपॉर्टेंटली मैथ्स आपको हेल्प करेगा जब आप क्वांटिटेटिव सेक्शन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. आयुष, मनु का क्वेश्चन है, बैचलर डिग्री आई शुड चूज टू अपीयर इन IIM एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन. यस, तो आई थिंक मनु इज ट्राइंग टू आस्क कि क्या मैं बैचलर कहीं से भी करके देन आई शुड गो फॉर मास्टर्स इन IIMs. यस यू कैन, बट बैचलर चूज करने के लिए याद रखिए कि आपको भी पता है, मैंने छिंदवाड़ा से किया था डिग्री. इट टुक मी 2 years टू टेक एडमिशन. 2 साल के बाद मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिला आफ्टर ग्रेजुएशन. तो आर यू इन अ पोजीशन टू वेस्ट योर टाइम? तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो स्टार्ट योर BBA प्रिपरेशन, ज्वाइन अ BBA कॉलेज, अ गुड कॉलेज, जहां पर आपको BBA में अच्छा एक एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा नॉलेज मिल सके. ठीक है, तो BBA एंट्रेंस करके BBA के अच्छे कॉलेज में ज्वाइन करने का फायदा ये रहेगा कि यू विल हैव दैट पर्सनालिटी, दैट स्किल्स, दैट नॉलेज एंड दैट एटमॉस्फेयर. तो आप ऑटोमेटिकली MBA में आपको वो हेल्प करेगा फ्यूचर में IIMs के लिए. ज्यादातर बच्चे जो नॉन इंजीनियर्स हैं वो अच्छे BBA कॉलेज के से ही MBA में जाते हैं, IIMs में जाते हैं. आप उठा के देखिए रिकॉर्ड, वेरी फ्यू कैंडिडेट्स यू विल फाइंड कि जो नागपुर से हिस्लप कॉलेज से या GS कॉलेज से कर रहे हैं और उनका IIMs में एडमिशन हुआ. वेरी रेयर. ज्यादातर जो नॉन इंजीनियर्स में बात कर रहा हूं वो अच्छे BBA कॉलेज से ही जाने के बाद जाते हैं. तो ये आपको हेल्प करेगा. MBA किस सब्जेक्ट में करना चाहिए? दिस इज, आई थिंक प्रियांश इज ट्राइंग टू आस्क अबाउट द स्पेशलाइजेशन. बेटा ये बहुत ज्यादा अर्ली है. इनफैक्ट आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे, मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में जाएंगे, तब आपको क्लियर होगा कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना. अभी इस बारे में बिल्कुल मत सोचो. अभी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचना जरूरी है आपको. थिंक अबाउट एंट्रेंस एग्जाम. हॉस्पिटैलिटी के एवरेज पैकेजेस क्या हैं? सृजन का कहना है अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मुझे देखें, टॉप मोस्ट कॉलेजेस से अगर आप करोगे हॉस्पिटैलिटी तो अराउंड 10 to 12 लाख मिलता है. नॉर्मल जो IHM कॉलेजेस है उसमें 6 to 8 लाख मिलता है आज. बट आज से 4 साल बाद समवेयर बिटवीन 14-15 लाख तक जाना चाहिए. तो हॉस्पिटैलिटी इज गुड. यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑल्सो. यू कैन स्टार्ट योर होटल चेन, यू कैन स्टार्ट योर ओन एनी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस. ठीक है, तो आई थिंक दीज आर द डाउट्स दैट इज अवेलेबल टू मी. एक आध क्वेश्चन और अगर आप चाहें तो मैं ले सकता हूं. दैट्स इट. आई थिंक बाकी मैंने इंफॉर्मेशन दिया. एनीवन इज एनी क्वेश्चन? निधि माहौरी का क्वेश्चन है, लॉ का टॉप कॉलेज. तो लॉ का टॉप कॉलेज है बेटा NLS बेंगलोर. NLS बेंगलोर जो क्लैट के थ्रू आता है, इट इज द टॉप मोस्ट कॉलेज, प्रीमियम कॉलेज, वन ऑफ द प्रीमियम कॉलेज ऑफ एशिया आप कह सकते हैं. NLS इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज. बेटा वो बहुत ही अलग कॉलेज है, उसके लिए बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ती है अपने को और उस पर प्रिपरेशन करके जाना. और अभी क्लैट का पैटर्न भी चेंज हुआ है. मैंने डिटेल में क्लैट के बारे में नहीं बताया है. वीडियो हमारे पास जो फ्री वीडियो है विकल्प के, वहां आपको मिल जाएंगी बहुत सारी चीजें. आई थिंक दैट्स इट सर. इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी यू कैन मूव टुवर्ड्स दिस. सर से नंबर ले सकते हैं या मेरे से भी बात कर सकते हैं. और जो भी रहेगा उसके लिए आप गाइडेंस के लिए अपन डिस्कशन करेंगे. एक बात मैं आखिरी आपको बोलना चाहता हूं, इट्स नॉट अबाउट यू आर ज्वाइनिंग विकल्प, इट इज अबाउट माय रिलेशन विद सर. दैट इज व्हाई आई एम हियर.
ठीक है, आई कैन प्रोवाइड यू वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव एंड आई एम अश्योरिंग यू, अगर सर मुझे बोल रहे हैं और आप मुझे ज्वाइन करते हो, मैं कॉन्फिडेंटली आपको रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, आपका ट्रस्ट में ब्रीच नहीं होने दूंगा, मैं आपको बहुत स्पेशल पर्सनल अटेंशन दूंगा अगर आप हमारे को ज्वाइन करते हैं। बट अगर आप नहीं भी करते हैं, देन ऑल्सो आई विल गाइड यू और देन ऑल्सो आई विल सपोर्ट यू वॉट एवर बी द सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इन फ्यूचर में भी। और मैं श्योरली आपको बोल रहा हूं कि आप कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज ट्राई करिए, स्टार्ट करिए, आइदर यू ज्वाइन CA, CS और एल्स ये जो मैंने कोर्सेज बताए उसके लिए। सृजन ने थैंक यू बोला है, थैंक यू सो मच सृजन। मनु का कोई क्वेश्चन है DU के लिए? मनु आप नहीं जा पाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बाकी मैं डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, हम लोग सेपरेटली वी कैन टॉक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दैट्स इट आई थिंक। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषि। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी गुड लक। बस आखिरी में एक ही सजेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्ट करिए, अपना करियर को बिल्ड करना वो आपके हाथ में है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।